Unit 2 Humor. Reading A The Never Never Nest. The characters Jack, Jill, his wife, Aunt Jane, nurse. And welcome to Unit 2 Humor. ह्यूमर शब्द से जो समझ में आता है वो आपके आसपास हमेशा होता रहता है। यदि ह्यूमर शब्द को हम लाफ्टर से जोड़े तो हंसी या लाफ्टर कब आती है आपको? कब हंसी आती है? हम कब खूब हंसते हैं? जोक पर हंसते हैं। यस, वेरी गुड, हम जोक पर हंसते हैं। और जब कोई बहुत मजेदार बात होती है तो हम राइट। नाउ वी विल रीड a small play, Never Never Nest. This is an one-act play by Cedric Mount. And you can see this picture. This is a scene. This is the lounge of Jack and Jill's villa at New Hampstead. Unit 2, Humor, Reading A in class 10. Because it's a drama, I'll tell you a small summary. आप इस सीन के बारे में पढ़ लीजिए तो आपको खुद समझ में आएगा यदि आपको ये दिख रहा हो स्लाइड। The lounge of Jack and Jill's villa at New Hampstead. The essential furniture consists of a table on which writing materials and 2 chairs are kept. As the curtain rises, the lounge is empty, but Jack and Jill come in immediately, followed by Aunt Jane. ठीक है, जब वो अंदर घुस जाते हैं रूम पे तो ये रूम का चित्र है। ठीक है, लाउंज में एक टेबल है, वहाँ कुछ लिखने पढ़ने की चीजें हैं, वहां से होते हुए लाउंज मतलब बाहर का बैठक, और वहां से होते हुए वो अंदर आते हैं तो ये रूम पे आते हैं। अब रूम में आपको क्या क्या दिख रहा है ये आप पहले नोटिस कर लीजिए, उनके रूम में क्या क्या है। ठीक से ध्यान से देखिए, पर्दा उठता है, कर्टन राइजेस। अब पर्दा उठेगा और आप क्या देखेंगे कि लाउंज में कोई नहीं है और जैक एंड जिल और आंट जेन अंदर आ गए हैं। अंदर आ गए हैं तो अब ये क्या बोल रहे हैं देखिए। अब देखिए कैरेक्टर्स हैं, देयर आर हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन यू सी? 3 characters. How many characters? Radiogram आपको दिख रहा है, exactly 3 characters. So who are they? Jill, Aunt Jane, and Jack. So Jill says, and this is the launch. Aunt Jane क्या कहते हैं? Charming, charming. Such a cozy little room and such pretty furniture. तो Jack says modestly. अब modestly का अर्थ आप हमको बताएंगे. We like it, you know, handy place to sit in and listen to the radiogram. बड़ा handy place है, अच्छा सा, छोटा सा. कौन बोल रहा है? Jack. Jack दिख रहा है आपको? This is Jack. यहाँ ये दिख रहा है Jack, right? So Aunt Jane क्या बोल रहे हैं? Oh, you have got a radiogram as well as a car and a piano. सामान क्या क्या है जरा देख लीजिए. And then Jack says, why of course Aunt Jane, you simply must have a radio set nowadays. ठीक है, ये तो होना ही चाहिए. मॉडेस्टली माने विनय से, ये तो ऐसे ही सीधा सा हम लोग बोलते हैं ना, कोई हमारे नम्रता, यस, हमारे साथ हमारे घर कोई आता है तो जनरली हिंदी में हम लोग बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? ये मेरी छोटी सी कुटिया है, सबसे बोलते हैं ना। सो मॉडेस्टली, सो बहुत विनम्रता के साथ हम अपने बड़े से आलीशान घर को कोई कुटिया कह देता है, तो ऐसा ही होता है, राइट? ओके, अब जिल सेज, जिल क्या बोलता है? इट्स सो नाइस फॉर मी. किस चीज का नाइस? व्हाट इज नाइस? व्हाट इज नाइस? व्हेन जैक इज अवे एट बिजनेस, I make him move it to the kitchen so that I can listen to it while I cook. क्या मूव करते हैं किचन में? Exactly, radiogram. Very good. Now, what is Jack saying? Sit down, Aunt Jane. You must be tired, and we have shown you everything now. तो Aunt Jane क्या कर चुकी अभी तक है? We have shown you everything now बोल रहा है. कौन बोल रहा है? Jack बोल रहा है. इसका मतलब Aunt Jane अभी आई है? Did she come just now? अभी आई है क्या? Wonderful. No. Aunt Jane पहले से आई हैं and she has seen the whole villa, all the rooms, the whole thing, whole home. Yes. And we have shown you everything now. All right. अब जब देख लिया तो क्या पूछ रहे हैं? What do you think of our little nest, Aunt Jane? Home को क्या शब्द कह रहे हैं? House के लिए कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं? House के लिए कौन सा शब्द यूज किया है? Nest. Very good. Our little nest. Right. So Aunt Jane क्या जवाब देती है? What do you think of our little nest, Aunt Jane? कैसा लगा आपको? I think it's wonderful, my dears. Look at that word, dears. Dears किसको बोला? किसको बोला dears? Jack and Jill both, इसलिए dears है ना? एक होता तो dear कहती, 2 लोग हैं, right? The furniture and the car and the piano and the refrigerator and the radio. What's it? It's wonderful, really wonderful. ठीक है,
और उसके बाद जैक बोलता है असली बात, क्या बोलता है? एंड वी ओ इट ऑल टू यू। ओ इट माने, ओ इट माने हम आभारी, हाँ, हम इसके लिए आपके कृतज्ञ हैं। वी आर ग्रेटफुल टू यू, ऋणी हैं, वेरी गुड, एग्जैक्टली, वी ओ इट ऑल टू यू, ये सब आपके कारण है ना? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, फाइन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाउ आंट जेन, यस जैक, दैट्स व्हाट इज वरीइंग मी, यस जैक, दैट्स व्हाट इज वरीइंग मी। किस बात का वरी है, परेशान है? हु? आंट जेन। वरीइंग यू आंट जेन? यस। आंट जेन क्या बोलती है? That check I gave you for wedding present, it was only 200 pounds, wasn't it? I didn't put 2000 by mistake. How much did Aunt Jane give? Actually, 200 pounds. And she was asking, did I put 2000 by mistake? वो पूछ रही हैं, क्यों पूछ रही हैं ऐसा? Why is she asking? 2000 तो नहीं डाल दिया था, क्यों पूछ रही हैं ऐसा? Why did she ask like that? 2000 is too more, हाँ 2000 बहुत होता है, लेकिन वो तो डाली नहीं थी, वो पूछ क्यों रही है? लेकिन जानबूझ के पूछ रही है वो, क्योंकि जिल बोल रही, देखे, why no Aunt Jane, what on the earth made you think that? ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? तो आप सोच के बताइए, चेकिंग ऑनेस्टी, ओहो हो, हाँ हाँ, नहीं वो लोग भी नहीं बोल रहे हैं कि आपने डाला है, नहीं, लेकिन वो किसी और कारण से बोल रही हैं, गलती से ज्यादा तो नहीं डाल दिया था, ये वो बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं देखिए, आगे आगे पढ़ के देखिए, समझ में आएगा। Well, that's all right, but I still don't altogether understand this house. It's very lovely, but doesn't it cost a great deal for rent? Yes, because of seeing the luxurious things. Very good. Doesn't it cost a great deal for rent? Look at the word rent. Are Jack and Jill on rent? So Jack is saying rent. Oh no, we don't pay rent. Aunt Jane, but Jack, if you don't pay rent, you will get turned out into the street, and that would never do. You have Jill and the baby to think of you now. How many members are there in the family? How many members are there in Jack's family, Jill's family? 3 members. कौन कौन? According to Aunt Jane. Aunt Jane कितने members की बात कर रही हैं? Jack, Jill and baby. Yes, right. So Aunt Jane says, if you don't pay rent, you will get thrown. People will throw away your things on the road, on the street. तो जैक जल्दी जल्दी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नो नो आंट जेन, you misunderstood me. We don't pay rent because the house is ours. So Aunt Jane says, yours? Yes, the home is an installment. Why? Yes, you just pay 10 pounds and it's yours. आपका कैसे हो गया? बोले 10 पाउंड तो दिया और हमारा हो गया. So Jack says, you see Aunt Jane, we realized how uneconomic it is to go on paying rent year after year when you can buy and enjoy a home of your own for 10 pounds. है ना? 10 pounds में अपना home हो जाता है, and a few quarterly payments of course. तो क्या होगा? Why be Mr. Tenant when you can be Mr. Owner? ये सेंटेंस बड़ा सुंदर है, देखिए तो. Why be Mr. Tenant when you can be Mr. Owner? तो what is Jack? Mr. Tenant or Mr. Owner? वेरी गुड. क्यों खरीदार हो जब मालिक बन सकते हैं? कौन बोल रहे हैं? वन. किराएदार हो जब मालिक बन सकते हैं. एग्जैक्टली. व्हाट इज जैक, टेनेंट और ओनर? ओनर. ओहो, ओनर. किस तरह का ओनर? टेनेंट नहीं है, ओनर ही है, लेकिन किस तरह का ओनर है? इंस्टॉलमेंट ओनर. वेरी गुड, एक्सीलेंट, दैट्स इट. नाउ आंट जेन, I see. Yes, there is something in that. Even so, you must be getting on very well to keep up a place like this. Getting on very well माने? Getting on very well माने क्या मतलब होता है इसका? देखिए, गेटिंग ऑन वेरी वेल, है ना? ये इसका क्या अर्थ होता है? आप बड़े रईसी से रहते होंगे, है ना? आप बड़े रईस होंगे टू कीप अप अ प्लेस लाइक दिस. if you have enough money to buy a house like this, you must be very rich. ये बोल रही है आंट जेन. oh he is आंट जेन. तो जिल क्या बोल रही है? he is आंट जेन. why? only last year he had a 5 shilling rise in what? didn't you Jack? rise in what? लास्ट ईयर ही 5 शिलिंग बढ़ा है. किसमें? नहीं, 5 शिलिंग राइज. जिल इज जैक्स वाइफ. सो जिल इज टेलिंग आंट दैट ही इज गेटिंग ऑन वेल. वो बहुत अच्छे से रहता है, वो बहुत अच्छा कमाता है. गेटिंग ऑन वेरी वेल मीन्स ही इज अर्निंग वेरी वेल. ही इज अर्निंग वेरी वेल. कैसा अर्निंग वेरी वेल? ही हैड लास्ट ईयर ही हैड अ 5 शिलिंग राइज. राइज किस चीज में? राइज माने बढ़ोतरी. राइज इन द पेमेंट. तो जैक फिर he is very humble and he says, of course that was nothing. I'm expecting 10 this Christmas. वो तो 5 ही था. This Christmas I'm expecting 10. 10 means 10 shilling rise, है ना?
एक्सपेक्टिंग 10 मीन्स एक्सपेक्टिंग 10 शिलिंग राइज। एक चीज पे ध्यान देंगे, जब आप ड्रामा ड्रामा आप करते हैं ना, दिस इज अ ड्रामा, और ड्रामा में ये जो चीजें आप पढ़ रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये जो नाम के आगे लिखा हुआ है ये व्यक्ति बोल रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या, कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर जो बोल रहा है उसको क्या बोलते हैं, डायलॉग, डिलॉग नहीं, डायलॉग, DIALOGUE, डायलॉग। ओके, डायलॉग आप देखिए, ये 5 शिलिंग राइस, इसके जगह पर सिर्फ 10 बोला, तो कुछ चीजों को ओमिट किया जाता है। वार्तालाप की जो भाषा होती है वो लिखित भाषा से थोड़ी सी अलग होती है, शॉर्टकट बोलते हैं हम, है ना। तो एक्सपेक्टिंग 10, अब पिछले बार 10 शिलिंग था, इस बार 5 शिलिंग था, इस बार 10 हो जाएगा, तो 10 शिलिंग हम फिर से नहीं बोलते हैं, सिर्फ वी जस्ट से 5 और वी जस्ट से 10, दैट मींस 10 shillings. Is that all right? So this is how you understand spoken part of English. Right? Now see. Now Aunt Jane says, I have just thought of something. That car, is it yours? तो Jill जवाब दे रही है, Of course it's yours, Aunt Jane. All? Well, no. Not exactly all. पूरा पूरा नहीं है. All yours माने क्या है? All yours माने? All yours पूछ रही है. क्या पूछ रही है? Only steering. हाँ. तो पूरा पूरा कार तुम्हारा है, सभी तुम्हारा है, सभी तुम्हारा नहीं, पूरा पूरा कार, वो सिर्फ कार की बात कर रही है, तो पूरा कार तुम्हारा है पूछ रही है। तो जिल तो बोल रही है ऑफ कोर्स आस, तो जैक क्या बोल रहा है, नो नॉट एग्जैक्टली ऑल, हाउ मच ऑफ इट, ओह आई शुड से द स्टीयरिंग व्हील एंड वन ऑफ द टायर्स एंड अबाउट टू ऑफ द सिलेंडर्स, बट डोंट यू सी दैट्स द वंडरफुल थिंग अबाउट इट। इसका क्या मतलब है, इस डायलॉग को ध्यान से पढ़िए और बताएं इससे क्या समझ में आ रहा है। व्हाट इज जिल ट्राइंग टू से? आंट ने पूछा पूरी कार तुम्हारी है, कार वाज एन इंस्टॉलमेंट एग्जैक्टली, लेकिन ये क्या बताता है, जब इंस्टॉलमेंट में है कार तो क्या क्या बताना चाह रहे हैं। जिल बड़े बहुत ह्यूमरसली बोल रही है इस चीज को, मजेदार तरीके से। क्या बोल रही है वो, कितना है कार का, कितना हिस्सा तुम्हारा है पूछ रही है आंट। तो क्या जवाब दे रहे हैं, द स्टीयरिंग व्हील एंड वन ऑफ द टायर्स एंड अबाउट टू ऑफ द सिलेंडर्स। ओनली स्टीयरिंग, वन टायर, कितने टायर होते हैं, हाउ मेनी टायर्स, 4 टायर्स, उसमें से एक टायर, ठीक है, एंड देन बट डोंट यू सी दैट्स द वंडरफुल थिंग अबाउट इट, डोंट यू नोटिस, कौन सा वंडरफुल थिंग, कि कार हमारे पास है, वो पूरी कार तो हमारे पास ही है, भले ही उसका कितना हिस्सा हम उसके कितने हिस्से के मालिक हैं, we own a part of it, we don't own, not exactly own, we are exactly not the owner of the whole car, we own the car in parts, it is run by cylinders, okay, here the car is run by cylinders, it is not petrol run car like that, like us. Aunt Jane, I don't see anything when wonderful in it, इसमें कुछ wonderful क्यों नहीं लगता मुझको, क्यों नहीं लगता ये सोचिए आप, but there is, Aunt Jane. You see, although we could never buy a car outright, we can enjoy all the pleasures of motoring for a mere £5 down. How much did they pay? And the rest by easy installments, I suppose. Exactly, Aunt Jane, exactly. And what about the radio? What is it? Well, that is the... That is the... क्या? वहां तक कह करके वो चुप हो जाता है जैक। क्यों? आंट उसे क्या क्या पूछ रही है कि वहां ऊपर वाले को देखिए कितना दिया था कार के लिए उन्होंने, £5 डाउन, डाउन मीन्स डाउन पेमेंट, उन्होंने कार को लेते समय सिर्फ £5 दिए थे, बाकी इजी इंस्टॉलमेंट्स। एंड रेडियो वो भी वैसे ही, एंड द पियानो वेल ऑफ कोर्स, सो ऑल द थिंग्स एट होम आर purchased in installments, right? So Aunt Jane says, and the furniture, now see this is the room, furniture, what all furniture can you see? जैक अब घबरा जाता है, आई एम अफ्रेड सो, एंड आंट जेन सेज, ये जो फर्नीचर है जिस पर मैं बैठने जा रही थी, आई सपोज ऑल यू ओन इज दिस लेग, लुक एट हर हैंड, शी सेज, ये पाँव बस है, ये पाया बस है आपका, वेल नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स दैट वन, ये पाया नहीं, वो वाला पाया, ऐसा बोल रही है कौन, जिल, मतलब आंट जेन परेशान है और जिल मजा ले रही है, शी पॉइंट्स टू अनदर, तो दूसरे पाया को दिखा के, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला पाया हमारा है, and Aunt Jane and the rest belongs to Mr. Sage, I suppose. Aunt Jane बोले हाँ, और दूसरा है वो मिस्टर एक्स का है, तो जिल बोले हाँ ऐसा ही है। So Aunt Jane क्या बोल रही है, well I'm not going to sit on this, I'm not going to sit on Mr. Sage's part for anyone, है ना, मैं ये दूसरे के पाए पर क्यों बैठूं। She stands up, now tell me how much do these installments come to, ये पूरा इंस्टॉलमेंट कितने सारे चीजों के लिए जो इंस्टॉलमेंट्स है वो पूरा कितना होता है,
So Jack says, well, actually, he takes out his pocketbook and consults it. Pocketbook निकाल के हिसाब देखता है. And then what happens? He calculates and says, actually to 7 pounds 8 and 8 pence a week. तो आंट जेन पूछती हैं ये सारे इंस्टॉलमेंट मिला के कितना हो जाता है. तो जैक बोलता है 7 pounds 8 pence a week. Good heavens! And how much do you earn? As a matter of fact, that is 6 pounds. हे भगवान, और तुम कमाते कितना हो? जैक ने कहा 6 pounds. But that's absurd. How can you pay 7 pounds 8 and 8 pence out of 6 pounds? ये तो बहुत ही अजीब बात है. ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? तुम 6 pounds कमाते हो और तुम्हें देना होता है 7 pounds and 8 pence, वो भी 6 pounds में से. ये कैसे कर सकते हो तुम? Oh, that's easy. You see, all you have to do is to borrow the rest of the money for the payments from the Thrift and Providence Trust Corporation. अरे ये तो बहुत ही आसान है. आपको करना ये होता है कि बाकी का जो बचा हुआ पैसा है उसको आपको उधार लेना होता है थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन से, जो लोन देने वाली बैंक होती है ना. They are only too glad to loan you any amount you like on note of hand loan. जिल कहती है अरे वो उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है लोन देने में, वो झट से लोन दे देते हैं. And how do you propose to pay that back? आंट जेन कहती है और उसे तुम वापस किस तरीके से करोगे? Oh, that's easy too. You just pay it back in installments. ओह ये तो बहुत ही आसान है, उसे भी हम इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देंगे. Installments? Aunt Jane, is anything the matter? Would you like to lie down? इंस्टॉलमेंट्स? आंट जेन क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हैं, क्या आप बैठना चाहती हैं? Lie down? Do you suppose I'm going to trust myself in a bed that belongs to Mr. Sage or Marks and Spencer or somebody? No, I am going home. लाई डाउन यानी मैं आराम करूं बैठकर? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बेड पे आराम करूंगी जो कि तुम्हारा है ही नहीं, जो जिसका मिस्टर सेज मिस्टर मार्क मिस्टर स्पेंसर नहीं पता ये किसका है? मैं यहाँ पे नहीं बैठने वाली, मैं अब घर जा रही हूँ. Oh, must you really go? ओह क्या आप सच में जा रही हैं? I think I would better. I'll drive you to the station. हाँ मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए. जैक बोलता है मैं आपको स्टेशन तक छोड़ आता हूँ. What? Travel in a car that has only one tire and two thingamis? No, thank you. I'll take the bus. क्या मैं उस कार में जाऊं जिसका एक टायर और नहीं पता क्या दो तुम्हारे है भी नहीं? नो थैंक यू, मैं बस से ही चले जाऊंगी. Well, of course you feel like that about it. वेल ठीक है, अगर आपको ऐसा ही ठीक लगता है तो. Now, I'm sorry if I sounded rude, but really I'm shocked to find the way you're living. I've never owned a penny in my life. Cash down. That's my motto. And I want you to do the same. मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने बहुत ही गंदा लगा मेरा बोलना, बट मैं बहुत ही शॉक हूँ कि मैंने देखा तुम किस तरीके से जी रहे हो. मैंने अपने लाइफ में कभी एक पेनी भी उधार नहीं ली, हमेशा कैश डाउन, कैश में सब कुछ खरीदा. यही मेरा मोटो है, मेरा उद्देश्य है, और मैं चाहती हूँ तुम भी बिल्कुल ऐसा ही करो. Now look, here's a little check I was meaning to give you anyway. Suppose you take it and pay off just one of your bills so that you can say one thing at least really belongs to you. अब देखो ये एक छोटा सा चेक है जो मैं तुम्हें देना ही चाहती थी. अब इससे कम से कम तुम अपने एक बिल चुका देना ताकि तुम कह सको कि तुम्हारा कम से कम कुछ तो अपना है. Thank you, Aunt Jane. It's very nice of you. थैंक यू आंट जेन, आप बहुत ही अच्छी हैं. There, now I must be going. I'll see you to the bus anyway. अब मुझे जाना चाहिए. ठीक है, मैं आपको बस के वहाँ मिलता हूँ. Goodbye, Aunt Jane, and thanks so much for the present. Goodbye, my dear.
गुड बाय आंट जेन, और थैंक यू बहुत उपहार के लिए। गुड बाय मेरे बच्चे, मेरे प्यारे। Oh, nurse, I want you to run and post this for me. I'll look after the baby while you are gone. ओ नर्स, मैं चाहती हूँ कि तुम भाग के जाओ और मेरे लिए ये पोस्ट कर दो। जब तक तुम जाओगी तब तक मैं बच्चे का ध्यान रखूंगी। Certainly, madam. बिल्कुल मैडम। Well, she's gone. What a tartar. Still, she did leave us a bit on account. How much was it? वेल वो जा चुकी है। बाप रे, सर चकरा गया। चलो, जाते जाते भी उन्होंने कुछ हमें दे के ही गया। कितना था वो? कितना दे के गई वो हमें? 10 pounds. Phew! That's great. We can pay off the next 2 months on the car with that. वो हमें 10 पाउंड्स देकर गई। हे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे हम अपने कार का आगे का 2 महीने का किश्त चुका पाएंगे। I'm afraid we can't. Why ever not? मुझे डर है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैक ने बोला, क्यों क्यों नहीं कर पाएंगे? You see, I have already sent it off for something else. Nurse has just gone to post it. क्योंकि मैंने वो पैसा कहीं और भिजवा दिया है। अभी नर्स को मैंने भेजा है वो पैसे को पोस्ट करने के लिए। Well, that's all right. Who have you sent it to? Dr. Martin. ओके, किसके पास भेजा है तुमने वो पैसा? जैक ने बोला। तो जिल ने कहा, डॉक्टर मार्टिन के पास। Dr. Martin? What on earth possessed you to do that? डॉक्टर मार्टिन? अरे, तुम्हें हो क्या गया है? तुमने ऐसा क्यों किया? There, now you're going to be angry with me. I am not angry, but why waste good money on the doctor? Doctors don't expect to get paid anyway. अब तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। जैक ने कहा, नहीं, मैं नहीं नाराज होऊंगा, लेकिन डॉक्टर्स के ऊपर पैसा क्यों खर्च करना? डॉक्टर्स को पैसा देने का कोई मतलब नहीं है। But you don't understand. Understand what? Why, just one more installment and baby is really ours. जिल ने कहा, पर तुम नहीं समझ रहे हो। जैक ने बोला, क्या नहीं समझ रहा हूँ? जिल ने कहा, बस एक और इंस्टॉलमेंट और फिर बेबी पूरी तरीके से हमारा हो जाएगा। कुछ समझ में आया दोस्तों? इसका मतलब वो जो बेबी था, वो बेबी की डिलीवरी भी इन महानों लोगों ने इंस्टॉलमेंट में करवाई थी। यानी बच्चे को भी घर पे तो लाए, माता पिता तो बन गए, लेकिन वो जो डिलीवरी थी, डॉक्टर को भी उन्होंने इंस्टॉलमेंट में ही पैसे दिए। आपको ये प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखा दोस्तों, ये हमारा प्ले कंप्लीट हो गया। ये प्ले कितना मज़ेदार था। इससे हमको सीखने को भी बहुत कुछ मिला कि लाइफ में हमको हर चीज़ उधार में नहीं लेनी चाहिए। हमारे पास जितने पैसे हैं हमें उनसे ही चीज़ें खरीदनी चाहिए। बेवजह सामान को घर में लाके अपने ऊपर लोन का बोझ नहीं लेना चाहिए, ताकि हम ज़िंदगी बहुत ही हंसी खुशी गुजार सके और बिना किसी टेंशन के। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने लाइफ में सिर्फ कैश का ही मोटो रखें, नो लोन नो क्रेडिट। चलिए अब हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और बाकी का एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब इन क्वेश्चंस को जरा सा ध्यान दीजिए। देखे तो ये बनते हैं आपसे। कैन यू आंसर देम? वेयर इज आंट जेन? In Jack and Jill's villa. Yes, in Jack and Jill's house. How many things are there in the room? If you have the textbook in front of you, you can refer to this passage. You can refer to the dialogues. How many things? 5 things. What are they? What are they? Anusita is saying 4. What are the things? Car. Car is there in the room. Piano. 2 chairs. Okay. Furniture. Radio. Radiogram, table, exactly. Refrigerator also, they have a refrigerator also. Fine, okay. Why does Jack say that they owe it to Aunt Jane? Jack ने कहा ये सब आपके कारण है. This is all because of you. We own this because of you. We have this because of you. Why did Jack say this?
Hmm? Aunt Jane is a lady. Shall we say he? Aunt है ना? He बोलेंगे क्या बेटा? She बोलेंगे है ना? हाँ, तो she gave Jack and Jill, yes, 200 pounds. किस रूप में? As what? Gift. Wedding gift. Exactly. Right. How much do Jack and Jill pay for the house? 10 pounds. How can one become owner from Mr. Tenant? How can one become Mr. Owner from Mr. Tenant? By buying the house instead of paying rent. Very good, Bhavna. Very good. By buying a house. When you buy a house, when you take it either on part payment or on down payment, if you can buy the house, you become Mr. Owner. If you are on rent, you are Mr. Tenant. Exactly. How many things did the couple buy? क्या क्या खरीदा था? By patience. Somebody is writing by patience. धीरज रख के. Exactly. उतना पैसा. How many things did the couple buy? क्या क्या खरीदा? Fridge, piano, car, radiogram. यहाँ वो सभी चीजों के बारे में पूछ रही हैं. See? Radio, piano, the car, and then this furniture. Exactly. All right. Now look at the words. You have a word cozy. See, the pets in the picture have a cozy bed to sleep. Cozy means comfortable. Aramdayak. Can you see this? It's so nice. They are in sound sleep. Handy place to sit. Now look at this diagram, this picture. You can see that this here is a radiogram, the radio, a big form of the radio, a big model of the radio nowadays that you have. We have a transistor nowadays. A big model of that radio is a radiogram. Now handy place to sit in means a very easy place. Easy place कहाँ पर है? The sofa. And this is the lounge, the sitting room. All right. Now you had words like cost a great deal, means very costly. Nice furniture costs a great deal. You had a word like uneconomic, which means not cheap or economical. है ना? Economical यहाँ पर सस्ता नहीं है या जो हमारे लिए पैसे बचाने वाला नहीं है, पैसे बचाने का जरिया नहीं होगा, वो uneconomic. Paying interest for bank loans is generally uneconomic. You lose much of your money in paying back interest on loans. 5 shilling rise, increase in price by 5 shilling. You can see 1 shilling means 0.70 Indian rupee and 1 pound means 94.92 Indian rupee at present. ठीक है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना कॉस्टली वो इंस्टॉलमेंट या वो चीजें जो खरीदा गया है वो पड़ रहा होगा हमारे दृष्टिकोण से. Modestly means humbly, आपने खुद ही कहा है, विनम्रता. And here is outright. Outright means in a direct way. हम लोग क्या कह रहे थे? If we would try to buy a car outright, we will not be able to buy it because it will be very costly, है ना? So Jack and Jill, Aunt Jane told Jack and Jill outright. Outright माने मुंह पर सीधा सीधा क्या बोला कि if they would find it difficult to maintain their house on installments. अगर installments पे house maintain करने लगेंगे आप तो it will be very difficult. Aunt Jane ने ऐसा कहा, indirectly कहा, फिर बाद में सीधा सीधा कहा, you have to be very rich to keep things buying on installments, right? Okay, here is a small exercise for you. ये आपके clues हैं और ये word जो है वो जंबल कर दिया गया है. आप देखिए आपको word मिलता है क्या? The first question here, first clue here. What are sofa, dining table, almirah, etc. called? One word for sofa, dining table, almirah, etc. Furniture, exactly. Furniture कहाँ है? This is. इसमें से furniture मिलता है. All right. Another name for fridge. Can you find out which wheel has that? Which one? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Which one is that? 3. Okay, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Third one. All right, very good. All broadcasts can be heard on this. What is the word? Very good, radiogram. A period of 3 months. तो दोस्तों ये बाकी का जो 2-3 बचा हुआ है ये आप घर में करके मुझे कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा. और ये
वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आप प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो काम का लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।